Did you revise the yesterday's lecture of 16.1 and 16.2? I did sort of. I did the first half. हम्म। Um, I ठीक है। made notes of the first half. I didn't do meiosis two. क्या बात है, That's it. वो easy होता है। Now we're going to start off with genetics. Genetics is a study of how characteristics that are determined by genes are passed down from a parent or parents to their offspring. You will remember that a gene is a length of DNA that codes for the production of polypeptide molecule, and the code is held in the sequence of nucleotide bases in the DNA. A triplet of three bases codes for one amino acid in the polypeptide that will be constructed on the ribosomes in the cell. हमें पता है कि जो एक जीन होता है, एक जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन, क्योंकि आपने चैप्टर 6 एएस बायोलॉजी में पढ़ा था, ट्रिपलेट ऑफ थ्री अमाइनो एसिड बेसेस मिलके एक प्रोटीन के लिए कोड करती हैं। ठीक है, मतलब कि तीन बेसेस मिलेंगे, ए टी, एडिनोसिन एडेनिन एडेनिन थाइमीन, ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। और ढेर सारे ऐसे जब डिफरेंट रैंडम कोड्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक polypeptide chain. So one chromosomes contain enough DNA to code for many polypeptides. Remember that. तो जो हमने कल एक चीज पढ़ी थी, what are the sources of genetic variation? उनमें से एक था क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज वन, जिसमें क्या होता था, आपके पास एक चैच फॉर्म होता था प्रोफेज वन में, where the changes in the combination of alleles of one or more genes that are carried on a chromosomes, and therefore the overall combination of alleles on the chromosome used to change, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती थी। दूसरा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो किस वक्त होती थी, ड्यूरिंग द मेटाफेज वन ऑफ द मेयोसिस, जब वो सारे इक्वेटर के ऊपर लाइन अप करते थे। वहां पे बायवेरिएंट्स की ओरिएंटेशन, कौन किसके सामने खड़ा हुआ है, वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलीज प्रोड्यूस करके देता था, और इफेक्ट क्या होता था, जेनेटिक वेरिएशन। तीसरा था रैंडम फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, एनी मेल गेमीट कैन फ्यूज विद एनी फीमेल गेमीट। ये तो ऑब्वियसली कॉमन सी चीज है कि आपको पता है कि वेरिएशन कैसे आ सकती है, ढेर सारे स्पर्म सेल्स होते हैं, जीतता तो सिर्फ एक ही है, एंड दैट आल्सो कॉजेज द जेनेटिक वेरिएशन between the resulting individual organisms. The next sections describe basic genetics, which include monohybrid process, which you have already studied in IGCSE or O levels. And if these sections will be revision for you, तो आप एक थोड़ा सा हम इसको skim भी कर लेंगे। Can you tell me what is the difference between gene and alleles? A gene is a specific sequence on a DNA. It's like it's for a specific. It's Mhm. basically codes for a specific polypeptide, and an allele is more of a mutation, isn't it? It's that too. जीन Yeah. आप कहो कि एक आपकी करेक्टरिस्टिक के लिए जीन बनी है, ठीक है, एक जीन है आपके हेयर कलर की, हेयर कलर एक जीन है, बट उस जीन के डिफरेंट वर्जन्स हैं, उन डिफरेंट वर्जन्स को हम कहते हैं एलील, जैसे ब्राउन, ब्लैक। ठीक है, दिस इज अ जीन, these are the alleles. Let's imagine a gene that determines coat color in a species of mammal, let's say a type of rabbit. This gene codes for an enzyme, and the enzyme catalyzes a step in the metabolic pathway that produces a pigment. This gene is found at the same locus or position of the same chromosome in all members of the species of the rabbit. However, there are several slightly different forms of this gene, and each with a very slightly different sequence of nucleotide bases. Let's say that are just two alleles of this coat है, ठीक है ना, एक आपके पास है जो ब्राउन पिगमेंट दे रही है, तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ ब्राउन कोट। और एक एलील इज जस्ट, यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट जीन। अगर आई कलर है, एक जीन है, एक जीन होता है आई कलर का, अब उस जीन के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट वर्जन्स हैं, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, ब्लैक आईज, ठीक है। तो other alleles code for an enzyme that cannot function properly, so no new pigment is produced as well. जैसे कोट का एक एलील व्हाइट कोट भी हो सकता था। अब दो एलील्स जब भी होते हैं ना, हर जीन के कुछ ज्यादा वर्जन्स होते हैं, उन वर्जन्स में से एक हमेशा होता है डोमिनेंट, जो दिखता है, और Recessive. दूसरा होता है एक रिसेसिव, जो नहीं दिखता लेकिन प्रेजेंट होता है। डोमिनेंट को हम यूजुअली साइंटिफिकली कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। मोर ओवर यू शुड नो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप, अगर मैं कहूँ फिनोटाइप है, उस बंदे की आंखें हैं ब्राउन, दिख रहा है ना आपको, फिनोटाइप है। अंदरून उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी कैपिटल बी भी हो सकता है, या स्मॉल बी भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में कौन सा एलील इसके लिए स्पेसिफाइड है। ये चीज आप देख नहीं सकते।
आपको नहीं पता कि वो ब्राउन जो आया उसकी वजह से, वो इस जीनोटाइप की वजह से आया, इस जीनोटाइप से, इस जीनोटाइप से। लेकिन फिनोटाइप इज ऑलवेज ड्यू टू जीनोटाइप। आप फिनोटाइप देख सकते हो, फिजिकल, फिनो निकले फिजिकल से, फिजिकली आपको उसकी आंखें नजर आ रही हैं ब्राउन है। आई कैसे, ये ट्रेड कैसे आया? ड्यू टू दैट जीनोटाइप जो कि डिफरेंट एलील्स के कॉम्बिनेशन से बना था। You have seen that every body cell contains two copies of each type of chromosome. This means that every cell contains two copies of every gene. And for example, a rabbit has two copies of the coat color gene in each of its cell. And this will be the same in every cell because all of them are produced by mitosis, जो उसके stem cells होते हैं. Now, there are three combination of the alleles of this gene that a rabbit could have. It could have been the copies of B alleles या फिर small b alleles. तो तीन ही possibilities बन सकती हैं, या दोनों कैपिटल बी हो, या दोनों स्मॉल बी हो, या फिर एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी हो। तीन मैक्सिमम में कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। दीज आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स। और ये अलग अलग जीनोटाइप एक एक फिनोटाइप को बता रहा है। ये कैपिटल बी शायद ब्राउन फिनोटाइप दिखाए, ये स्मॉल बी वाला जीनोटाइप शायद ब्लू दिखाए, और ये कैपिटल बी स्मॉल बी वाला दोबारा से ब्राउन दिखाए। अब इनमें से होमोजाइगस एलील्स कौन से और हेट्रोजाइगस एलील्स कौन से हैं? होमोजाइगस आर द वंस विच आर एग्जैक्टली सेम, जैसे कैपिटल बी सेम है ना, और स्मॉल बी ये क्या है, ये भी सेम है, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस होता है कि एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो। गॉट इट? Yeah. डोमिनेंट इनमें से होता है कैपिटल वाला। अब मैं आपसे पूछें कैपिटल बी क्या है? दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज डोमिनेंट। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्या है, हेट्रोजाइगस लेकिन डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल बी जीत जाएगा। ये क्या है, ये है होमोजाइगस लेकिन रिसेसिव थे। समझ आ रहा है फर्क क्या है? Yeah. Good. Now let's think about the effect that these genotypes will have on the coat color of the rabbit. The allele B codes for the production of a functional enzyme so that any rabbit with this allele will have a brown coat. The allele B codes for a non-functional enzyme. So if a rabbit has only this allele, it has a white coat. And the probable observable characteristics are its phenotype. B जो है, B कोड कर रहा है फॉर व्हाइट, और कैपिटल बी कोड कर रहा है फॉर ब्राउन। तो अगर कैपिटल बी ब्राउन यहाँ पे नजर आ रहा है कि कैपिटल बी से उसको शो किया हुआ इट इज डोमिनेंट, मतलब कि अगर एक पेरेंट से ब्राउन है और दूसरे पेरेंट से ब्राउन है तो ऑब्वियस ही बात है यार कि रैबिट ब्राउन ही होना है। अगर फादर से ब्राउन आए और मदर से व्हाइट आ जाए तो भी डोमिनेंट कौन सा है, फादर वाला, तो ये भी ब्राउन होगा। अगर फादर और मदर दोनों से व्हाइट व्हाइट आए तो यह जाहिर सी बात है, फिर तो रैबिट भी व्हाइट कोट कलर ही शो करेगा। So genotype are the alleles possessed by an organism. Homozygous means having two identical alleles of a gene. Heterozygous means having two different alleles of a gene. And phenotype are the observable features on the organism that are affected by the genotype. तो यहाँ हमने देखा कैपिटल बी ब्राउन कोट लाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी ब्राउन कोट लाएगा, और स्मॉल बी व्हाइट कोट लाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल बी वॉज डोमिनेंट एंड द व्हाइट कोट के लिए जो स्मॉल बी था वो था रिसेसिव। तो जब एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट प्रेजेंट हो ना, तब भी डोमिनेंट ही जीतता है। दोनों डोमिनेंट में भी डोमिनेंट जीतेगा, और आपको दोनों रिसेसिव के अंदर भी आपका वो उस केस में तो रिसेसिव ही जीतेगा। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ द एलील्स। कुछ जगहों पे आपके पास मल्टीपल एलील्स भी होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए है ए हो, ब्लड ग्रुप बी के लिए है बी हो, ए बी ग्रुप के लिए है ए बी, ओ नेगेटिव के लिए या ओ पॉजिटिव के लिए आपके पास दोनों ओ का होना जरूरी है। उसमें आपके पास मल्टीपल एलील्स भी आते हैं, ठीक है। फिर को डोमिनेंट भी आते हैं। को डोमिनेंस भी हम आगे पढ़ेंगे, जिधर दोनों एलील्स का फर्क नजर आता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ता हुआ। And when you are dealing with codominant alleles, it is generally a good idea to show them in a slightly different way from that used for dominant and recessive colored gene. तो ब्लड ग्रुप के अंदर भी यू कैन सी ए ब्लड ग्रुप ए के लिए है, एक ए एलील हो एक बी एलील हो, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कोडोमिनेंस हो रही, क्योंकि इधर कोई डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, वो अलग चीज है। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल एलील्स वाला कॉन्सेप्ट, वहां पे कोडोमिनेंसी आती है। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंसी। क्यों? बंदे का ब्लड ग्रुप ए या बी में से डिसाइड नहीं हुआ कि कौन डोमिनेंट था। ए डोमिनेंट था तो ए होगा नहीं, बी डोमिनेंट था तो बी होगा नहीं। उसका ब्लड ग्रुप क्या बन गया, दोनों डोमिनेंट थे, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी बन गया।
मदर से ए आया, फादर से बी आया, बजाय ये कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, उसको दोनों ही मिल गए, तो लोगों का ब्लड ग्रुप होता है ना ए बी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंसी एज वेल। गॉट इट? Yeah. So dominant allele has the same effect on phenotype whether or not another allele is present. Recessive allele only affects phenotype if no dominant allele is present. Multiple allele जैसे ब्लड ग्रुप की दो तीन से ज्यादा एलील्स है, ए बी ओ ए बी, और को डोमिनेंट जैसे ब्लड ग्रुप ए बी, दोनों का डोमिनेंट इफेक्ट था। ये नहीं कि सिर्फ ए जीता तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए था, या उसका सिर्फ ब्लड ग्रुप बी था, दोनों था, उसका ब्लड ग्रुप ही ए बी था। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट यूनिट कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, विच वी हैव नेक्स्ट इन योर 16.4। गॉट इट?